Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to STEAM Pakistan and STEAM Sitare. Now, I want to highlight our program session. Means in this program, this is the episode 8, and first of all, I introduce myself and my journey of school, as well as I want to share with you all the elements of videography or the video editing for a STEAM activity. And after it, there is a very humble and kind suggestions related regarding to this session. And after it, note of thanks. And the last one is question answer session. So I want to start the first step of our session is intro of focal person. My name is Amri Noor from Government Girls High School, Azizabad, Sakhar. And our school registered, and as a focal, I have been registered on 7th December 2022. After it, on 19th December 2022, our school students registered in STEAM Pakistan. Alhamdulillah, we have completed our C1, year 1, level 1 to 10th, and plus start journey on 28th Feb 2023. After it, we won STEAM Mukablo on 6th March 2024. And Alhamdulillah, by the special grace of Allah Ta'ala, we got first position in Sakhar district. Sakhar is the third biggest or the largest city of Sindh. And second position in Sindh regional level, as well as fifth position in Pakistan. I'm talking about C1, cycle 1. And after it, in September 2024, we have completed the journey of STEAM, C2, cycle 2. And now starting STAR journey. I have also conducted refresher 1-day training on STEAM journey with respected Sir Jamal. I have also nominated STEAM champion on 19th August 2024 by STEAM Policy Unit Sindh. This is the brief timeline or the journey of Azizabad and as a focal person. After it, I want to share the elements of videography or video editing for a STEAM activity. Okay. There are, in my perspective, there are 3 main elements of videography. Not only the videography, teaching and the learning process. These are SMART, SWOT, and 4 C's. Now come over to SMART. SMART means, I know we all know very well about the meaning of SMART, but इस वक्त मेरे SMART को डिस्कस करने का मकसद आगे चलकर मैं अपनी जो वीडियोस हैं, अजीजाबाद की वीडियोस हैं, आपसे शेयर करूंगी इन पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक
एंड टाइमली। हाउ, देखिए, फिर हम डिस्कस मजीद करते हैं। मिस समरीन, आपकी प्रेजेंटेशन के नीचे एक होगा प्रेजेंटर व्यू। सो आई थिंक सॉरी। उस पे फिर फुल स्क्रीन आ जाएगी। आई थिंक यू कैन नॉट लाइक सी फुल स्क्रीन अभी ना। सो आपकी नीचे होगा प्रेजेंटर व्यू, जो बिल्कुल नीचे बार है, जहाँ जूम इन की ऑप्शन है ना, जूम इन एंड जूम आउट की। इफ यू गो थोड़ा सा नीचे एंड यू कैन सी के ये 7 आइकन्स बने हुए हैं। वेट मैम। नहीं मैम, जहाँ पे 120% लिखा है उसके बराबर में जो छोटू सा स्लाइड बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें। हाँ, सबसे पहले जो है। इसके बराबर वाला जो था एक्चुअली उसको क्लिक करना था। ओके, वेट मैम। बिल्कुल इसके साथ बना हुआ है, जो इस बुक के साथ एक आइकन बना हुआ है, आप उसको कर लें अगर इफ इट्स पॉसिबल। इसके साथ वाला जी, रीडिंग व्यू के साथ वाला, सॉरी, उस तरफ। दिस वन मैम। जी स्लाइड जी शो। स्लाइड शो, जी जी। बिल्कुल। बनाने का कॉन्फिडेंस आया। हमारे और सोचना हम इससे अपना कारोबार कर सकते हैं। जी, अब मैं बात करूंगी हेलो। अब मैं बात करूंगी स्पेसिफिक पर। इस स्पेसिफिक को डिफाइन करूंगी। आपने यहाँ देखा कि स्पेसिफिक एक वीडियो बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक होना लाजमी है। आपके पास एक कंटेंट होना लाजमी है जिसमें आपका सबसे पहले जो एसएलओ है वो कवर्ड होना चाहिए। और प्लस आपने जो स्लाइड बनानी है, जो आपने जो भी वीडियो बनानी है, उसमें जो आप स्लाइड ऐड करेंगे, सबसे पहले उसमें आपका स्कूल का नेम, टॉपिक नेम, साइकिल कौन सी है, C1 है, C2 है, लेवल नेम आपने मेंशन जरूर करना है। और साथ ही साथ आपने न सिर्फ सुनने में बल्कि देखने में और पढ़ने में भी एक एक चीज वीडियो में क्लियर होनी चाहिए कि ये जो वीडियो चल रही है इसकी मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है। ना सिर्फ रीडेबल हो, ऑडियोबल भी हो और विजुअल तो हो ही हो। लिहाजा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके लिए मुख्तलिफ एप्स मौजूद हैं हमारे अराउंडिंग सराउंडिंग में। और इसके लिए कोई बहुत ही स्पेशलाइज ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत नहीं होती है। जस्ट अपने मोबाइल सेल के ही थ्रू हम डिफरेंट वीडियोस अपने डिफरेंट स्टीम प्रोजेक्ट्स के लिए बना सकते हैं। एंड प्लस उसका ये याद रखें, हमेशा स्पेसिफिक हो, उसका कंटेंट नॉलेज ऐसा हो कि जो स्टूडेंट्स हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू टीचर
का जो कंटेंट है वो बहुत कम हो, बच्चे बल्कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज इतनी इतनी मजबूत और मुरत्तब दी गई हो कि वो उनसे ही सीख जाए जितना टाइम आपका पीरियड आप उनको दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ है मेजरेबल हो और अचीवेबल हो कि आया जो एसएलओ है क्या उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चा सीख गया है या नहीं है, रियलिस्टिक हो। बहुत ही ज्यादा हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी वीडियो की बात करूं तो ये एक आर्ट एक्टिविटी है और मैंने फ्लिप क्लासरूम के तहत एक दिन पहले बच्चों को ये कह दिया था कि आपने बेटा हमारी कल क्लास जो है वो है आर्ट एक्टिविटी है और आपने घर से जो कुछ भी आपकी अराउंडिंग और सराउंडिंग में चीजें हैं वो लेकर आनी है। कुछ भी किचन से ले आइएगा, फ्रिज से ले आइएगा, सिलाई जहां जहां मशीन, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे सवालात किए तो मैंने कहा जहां मशीन बेटा अम्मी की रखी हुई है ना, आपने सिंपल वहां जाना है, वहां से मटेरियल लेकर आ जाइएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा। देखें इसमें इस पूरे वीडियो में किस किन चीजों से बच्चों ने फ्रेम बनाए एंड बिलीव मी वो फ्रेम बनाकर सेल आउट भी किए, चाहे वो 50 रुपए में किए, ठीक है। और वो कौन सी चीजें थी, टूटी हुई चूड़ियां, ये जो बॉटल्स के जो ये जो कवर लिड, उसके साथ ही साथ ये मैं कहूंगी कि पिस्ते के छिलके, मूंगफली के छिलके, अंडे के छिलके, बटन, सितारे, लैस, बची हुई लैसें, धागे, इसके साथ ही साथ स्टोन्स, शेल्स, टूटे हुए शेल्स जो यकीनन कराची में या बहुत सारी शॉप्स पर मिलते हैं जिनकी ज्वेलरी भी हम यूज करते हैं। लिहाजा रियलिस्टिक हो, जो भी काम हो। आगे वाली जितनी भी वीडियोस में है वो घर से विनेगर लेकर मैं गई, बच्चों से कहा कि भाई किस फ्लिप क्लासरूम के तहत एक दिन पहले, फ्लिप क्लासरूम उसको कहते हैं जो एक दिन पहले आप टॉपिक बता दें कि हम ये करने वाले हैं, बेटा इससे रिलेटेड चीजें आप अपने घर से जो भी अवेलेबल हैं वो भी लेकर आइए और मैं भी लेकर आऊंगी। तो और सबसे बढ़कर लास्ट वन है टाइम, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि मुख्तलिफ पिक्स को आपने मर्ज करना है मुख्तलिफ ऐप के जरिए, फॉर एग्जाम्पल कैपकट के जरिए, और ग्रिड हमारा एक ऐप है उसके जरिए अपनी पिक्स को जो है वो मर्ज कर दीजिए टेक्स्ट के साथ। और साथ ही साथ साउंड इफेक्ट देने के लिए काइंडली आप लोग मालूम होंगी, मुझे मालूम है आप सबको मालूम है ये तमाम चीजें, मैं जस्ट एक रिमाइंड करवा रही हूँ, फैन जरूर बंद कीजिए ताकि जो क्वालिटी है ना साउंड की वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रहे। साथ ही साथ जिस रूम में क्लास में आप एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं, किसके लिए, वीडियो बनाने के लिए, उस रूम का डोर क्लोज कीजिए ताकि बाहर से आने वाली आवाजें या शोर या बेल की रिंग जो है ना वो सुनाई ना दे। उसके साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि हम इन छोटी छोटी डायलॉग जो हमारी हम कहते हैं बहुत बड़ी हो गई है ना बच्चों की डायलॉग डिलीवरी, देखिए इन्हीं तमाम एप्स में डायलॉग स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन पर जस्ट फोकस किया जाए। और मैं ये समझती हूँ इस छोटे से मोबाइल के थ्रू ना विदाउट बहुत बड़ी बड़ी मैंने अभी तक कुछ नहीं खरीदा है, हमारे स्कूल के किसी टीचर ने कुछ नहीं खरीदा है, हम ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इन गैजेट जो हमारे हाथ में गैजेट है ना इसके थ्रू हम बहुत ही जबरदस्त एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई किसकी, स्मार्ट की बात। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं और वो क्या है, SWOT। SWOT for S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat. Now ये किस तरह से और क्लेरिफाई होंगे आफ्टर दिस वीडियो। Government Girls High School Mrs. Abad Sucker. Good. STEAM Club Iconic Science. C2.level.6.
Activity, demonstration of the different chemicals as acidic, basic, or natural. Focal person, Ms. Ambreen Noor. Thanks of focal person, Ms. Ambreen Noor. जी। नाउ मैं इस वीडियो के थ्रू स्ट्रेंथ को डिफाइन करूंगी। एक्चुअली व्हाट इज स्ट्रेंथ? हम किसके साथ कंसर्न है? स्टूडेंट्स आर आवर स्ट्रेंथ। बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारी स्ट्रेंथ हैं। देखिए, हमने कैरिकुलम के साथ साथ उनके इथिकल वैल्यूज को भी बहुत ज्यादा एनहांस करना है, उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। बच्चों को ये सिखाना है कि नो नेवर होता है, यस एवर होता है। हमने उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। हमने उनको ये बताना है कि शीन से दो चीजें आती हैं, एक शिकवा और शिकायत, और एक आता है शुक्र। हमेशा कुछ ना होते हुए भी शुक्र करना है। और सबसे लास्ट चीज जो हमने अपने स्ट्रेंथ, न सिर्फ वो हमारी स्ट्रेंथ है और बच्चों की शक्ल में भी स्ट्रेंथ है, वो है डू एंड डाई। बी रेजिलेंट। किसी भी तरह हमने अपना पर्पस, हमने अपना गोल, हमने अपना एम कंप्लीट करना है। हमें बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बट डू एंड डाई, जियो या मर जाओ। मैं अपने बच्चों को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ इस हवाले से देती हूं कि आप कभी भी आपकी जुबान पर नो ना हो। गर्मी है, पंखा नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इमरजेंसी एकदम ऑफ हो जाती है, कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हमारे मुल्क में हो जाती है। सो बी रेजिलेंट। बच्चों को भी यही सबक देना है। एंड आफ्टर इट, इसके साथ ही साथ आपने इस वीडियो में जो भी पीछे चली थी वो ये देखा था कि हम इससे अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों को खाली कैरिकुलम पर फोकस करने के साथ ही साथ उनको स्किलफुल और एंटरप्रेन्योर भी बनाना है कि आपने अपने पैरों पर खड़े हो कैसे, जल्द से जल्द कैसे होना है कि आप अपनी पान सुपारी, आप अपनी लेस, चिप्स, आप अपनी पेंसिल, पेन, माँ बाप से ना मांगिए उनके पैसे। आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी। किस तरह एग्जाम्पल दी कि उन्होंने यही अपने जो फोटो फ्रेम्स थे जो उनके हाथों से तैयार किए गए थे, 50-50 रुपए में सेल किए। एंड आफ्टर इट मैं आऊंगी वीकनेस। यस, यहां मैं कभी भी स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं करूंगी, यहां मैं टीचर्स का जिक्र करूंगी। काइंडली मैं समझती हूँ ओवरऑल ऑल जितने भी टीचर्स हैं हमारे बेइंतहा इंटरेस्टिक हैं, डेडिकेटेड हैं। साथ ही साथ यहाँ हर टीचर को अपनी स्किल इंप्रूव करनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ये नहीं कि मैंने एमफिल कर लिया देन स्टॉप। नो, जब तक टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है, आपने अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, आपने अपनी वीकनेस पर ओवरकम करना है। आज अगर मैंने इस तरह की कोई अपनी क्लास ली है ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम फीडबैक के तौर पे अपने ही आप से पूछूं किसको और किस तरह इंप्रूव करूंगी।
किस तरह और मजीद मैं बेहतर तरीके से पढ़ा सकती हूँ। ठीक, ये हो गई एक वीकनेस। एंड एज अ टीचर वी शुड बी ओवरकम आवर वीकनेसेस। After it, opportunity. No doubt, no doubt. Salute to STEAM Pakistan, STEAM Policy Unit, respected Sir Jamal, Madam Sana, and all crew of STEAM Policy Unit or STEAM Pakistan. इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया। देखें, हम सब फोकल पर्सन, हम सब टीचर्स, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते थे। बट ये कहां से अपना जादू लेकर आ गए कि स्टीम पोर्टल पर वीडियोस शेयर करें। एक अलाइन कर दिया हमें इन लोगों ने एक अलाइनमेंट दी कि हम सब कुछ ये प्रीवियसली करते थे, बट एक अलाइनमेंट के थ्रू कि हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी है, हमें किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी है, किस तरह से अपने बच्चों को एआई टूल्स के बारे में डिजिटल लर्निंग के थ्रू पढ़ाना है। सो अपॉर्चुनिटी हमारे अराउंडिंग सराउंडिंग होती है, सिर्फ उसको फाइंड आउट करने की, सर्च करने की जरूरत होती है। एंड द लास्ट वन इज थ्रेट। यस, it is very very important, and I'm say that it's most important. Threat or the challenges that we have faced in a ground situation. देखें, हमारी तमाम टीओ हमारी तमाम एक पॉलिसी मेकर्स अपने ऑफिसेज में बैठे हैं और वो पॉलिसीज बना रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर कौन है, कौन ग्राउंड लेवल पर खेल रहा है? स्टूडेंट एंड टीचर। सो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो टीचर फेस करते हैं? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो नेटवर्क, नो रिसोर्सेज, नो एप्रिसिएशन, मेनी 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 मोर थिंग्स। बट what I have always said, शीन से दो चीजें आती हैं, शिकवा, शिकायत। रिमूव इट इन योर लाइफ, शीन से शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टीम पाकिस्तान आ गया ना, स्टीम पॉलिसी यूनिट आया ना, हम तमाम टीचर्स को, तमाम फोकल पर्संस को, तमाम पब्लिक, रिमेंबर ये मैंने पब्लिक पर क्यों जोर दिया? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक स्टूडेंट्स। पब्लिक स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को इनकरेज करने के लिए एक अल्लाह पाक ने भेजा ना। सो नो डाउट थ्रेट बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बट उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बी एडेप्टेबल, बी रेजिलेंट, बी डेडिकेटेड, be enthusiastic, and we all are, alhamdulillah. So come over to the next one is C4 and the last one, that is what? C4 means first of all communication, collaboration, critical thinking, and then creativity. How? Let's see. समान
4, 5. Water 7, 4.5 to 8.0. Milk 6.4 to 6.8. जी मैं एलिब्रेट करूंगी अपनी इस वीडियो को C4 के साथ। देखें, यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हुई, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन करूंगी कि अब टीचर्स, हम सब लोग ना टीचर नहीं हैं, हम लोग सब फैसिलिटेटर्स हैं। और बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है अब और पहले की पढ़ाई में। अब स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास है, टीचर सेंटर्ड क्लास नहीं है। लिहाजा जब आप क्लास डिस्कशन का मौका देते हैं तो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, कोलैबोरेशन के साथ एक नया काम उनके अंदर आता है, कुछ नए करने की जुस्तजू पैदा होती है, और साथ ही साथ कुछ नहीं आ रहा होता तो आपस के मशवरों से नहीं आ रहा होता क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें टीचर जो है वो फैसिलिटेट करता है, उन तमाम रेमेडीज प्रोवाइड करता है, उन तमाम क्वेश्चंस की सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो नहीं आ रहे होते। साथ ही साथ कोलैबोरेशन के जरिए एक नई चीज क्रिएट होती है। मैं यहाँ एक चीज और जरूर मेंशन करना चाहूंगी एज स्टीम चैंपियन के थ्रू कि काइंडली फोकस ये किया करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीम एक्टिविटी एंड स्टीम डिमॉन्स्ट्रेशन। देखें, डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ना वो कोई एक क्लास दूसरी क्लास के सामने करती है, डिमॉन्स्ट्रेट करती है, जबकि एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाती है एक ही क्लास में, या जब होल एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाएगी, होल स्कूल एक्टिविटी करवाई जाएगी, उसमें तो डिफरेंट क्लासेस होंगे। अदरवाइज यहां पर मैं बात करती हूं डिमॉन्स्ट्रेशन की। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ये है कि ये मैं रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रही हूं कि एक क्लास दूसरी क्लास के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करे, बकायदा रिपोर्ट राइटिंग में ये मेंशन किया करें कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कि या एक्टिविटी है। डिमॉन्स्ट्रेशन अगर है तो कौन सी क्लास किसको किसके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करवा रही है। साथ ही साथ एक्टिविटी है तो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं, तो काइंडली इसमें अगर एक्टिविटी भी है तो इसमें सिलेबस, जहां आपका SLO डिफाइन करना होता है रिपोर्ट राइटिंग में, तो वो जरूर काइंडली मेंशन कीजिए चैप्टर, क्लास, इवन मैं तो पेज नंबर भी मेंशन करती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्टिविटी, सो प्लीज फोकस ऑन इट। इसके साथ ही साथ मैं ये जरूर यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी एक छोटी सी बात। C1 में ईयर 1 में साइकिल 1 में हमने रैंडमली उठाए टॉपिक्स कि देखिए ये टॉपिक जो है कोई भी हमारा स्टीम से टच करता हुआ है ना, तो हम इस पर हम बच्चों से कंटेंट और वीडियोस वगैरह बनाते हैं इस पर। बट कहते हैं ना कि प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। तो सीखते सीखते अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम ने हमें ये भी सिखा दिया कि हम अपने SLOs को किस तरीके से कवर अप करें। और C2 में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया स्टार्ट में, हम लोगों ने वो स्टार्ट करा था तकरीबन
द एंड ऑफ अगस्त और स्टार्ट ऑफ सितंबर, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड हमने कर दिया था एंड ऑफ अक्टूबर तक। क्या स्टीम जर्नी लेवल 1 to 10 1 मंथ में, ठीक है। हाउ, देखें इस दफा मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और मेरे टीचर्स ने साइकिल 2 में हमने ना अपने जो टॉपिक्स थे ना पढ़ाने वाले, जो हमें चैप्टर्स मिले थे, स्कीम ऑफ स्टडी होती है, उसमें से हमने इस मंथ में इतने करवाने हैं। तो जल्दी जल्दी हमने ना पहले मैं फिर रिपीट कर दूं, साइकिल 1 में हमने रैंडमली कोई भी दुनिया के टॉपिक उठाए थे, बट साइकिल 2 में हमने अपना सिलेबस उठाया, अपना कैरिकुलम उठाया। इवन ये उससे फर्क ये पड़ा कि बहुत ही जल्दी कवर अप हो गया और बहुत ही जल्दी प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म हो गए। इवन ये कि मेरे जो हब टीचर्स के अलावा दूसरे स्कूल में टीचर्स हैं, तो वो कहने लगे आप कहीं जा रही हैं क्या? मैंने कहा नहीं भाई, क्या हो गया, अल्लाह ना करे, आपने इतनी जल्दी कैसे कवर करवा लिया? तो इस तरीके से स्टीम जर्नी के थ्रू हमने अपना काम भी बहुत तेजी के साथ जो है तेजी के साथ लेकर चले, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा तेजी दिखाएंगे, क्योंकि हमें जो एक्सेल कर रहा है ना, हमें जो स्पीड अप कर रहा है, हमारी जो वेलोसिटी है, हमारी जो एक्सेलरेशन है, वो इस टीम पाकिस्तान के हाथ में है, हम सब की। सो नेक्स्ट ओवर टू नेक्स्ट सेगमेंट। हाँ जनाब, these are the very humble and kind suggestions from my side. Number 1, conduct sessions. It means in person, face to face. STEAM training sessions 2 times in a year at district level. Sir, मैं फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, नो डाउट आप लोग जो सेशंस करवाते हैं वो हर वीक करवा रहे हैं, बट ऑनलाइन में और फेस टू फेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्राउंड रियलिटीज पर बैठे हुए जो टीचर्स हैं ना, उनकी ग्राउंड रियलिटीज ही कुछ और है। उन पर फोकस करते हुए, हर एक के पास एसेस नहीं है, उस वक्त टाइम नहीं है, मे बी एसेस नहीं है इंटरनेट जो आप लोगों के जो ऑनलाइन सेशंस हैं वो ले सकें। नंबर 2, ये मेरी काइंड रिक्वेस्ट है, सजेशंस हैं, आई नो आई एम नथिंग। ये जो सेशंस साल में 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग्स करवाई जाएं स्टीम की, उसमें उसको जो मॉनिटर करे वो कौन, फेडरल मिनिस्ट्री या सेल्ड, मस्ट फॉलो अप द अटेंडेंस ऑफ स्कूल, के वेदर टीचर्स मौजूद, अगर हमने इतना बड़ा एक ट्रेनिंग, एक इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है, कहाँ से जो ट्रेनर्स हैं वो आ रहे हैं, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम टीचर्स अटेंड कर भी रहे हैं? एचएम्स को जो है वो फॉलो अप उनसे लिया जाए। नंबर 3, रिकॉर्डेड स्टीम सितारे सेशंस शुड बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। मैडम इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज कि मैंने बड़ी सर्चिंग करी तो मुझे जस्ट 2 और 3, हार्डली 2 मुझे अवेलेबल हुए। देखिए, कॉन्फिडेंशियल एक अलग चीज है, ओपनली ये स्टीम सितारे सेशन भी अवेलेबल हो, इससे एक फायदा क्या होगा, क्या पता किसी का सेशन जो है वो मिस हो गया हो, तो वो उस तमाम गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। नंबर 2, ये थोड़ी सी ऑफिशियल्स को क्यूरी हो कि यार ये जो नेक्स्ट सेशन है थोड़ी सी चीटिंग कर ना हो जाए, नो, वो जस्ट एक ये क्या कहें, रेफरेंस के तौर पर होगा। हर स्टीम सितारा एक अलग सितारा है, उसकी एक अलग क्रिएटिविटी होगी। नंबर 4, इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट guidelines should be shared with any sitare to conduct the STEAM सितारे लाइव सेशन। मैम इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि जिस तरह से आप लोगों ने एक रिपोर्ट
राइटिंग फॉर्म में स्टीम जर्नी और स्टीम सितारे की मौजूद है ना, बिल्कुल इसी तरीके से रिटन में क्या क्या होना चाहिए, ये कहना चाहिए कि एक फॉर्मेट, एक टूल, एक रूब्रिक किसके लिए भी मौजूद हो, कंडक्ट करवाने के लिए, सितारे सेशन कंडक्ट करवाने के लिए भी ये चीज मौजूद हो. And the second last one is, and it's very, very important. Any reward should be in the form of AI related sessions, one day training, only and only one day training for the transformation of advanced skill generation to generation, not in the form of money. मैडम मैं बस एक बात यहां कहना चाहूंगी, भूखे को ना पैसे नहीं दें, भूखे को खाना दें, क्योंकि वो बहुत शदीद भूखा है. मैडम, टीचर्स को और बच्चों को किसी भी कंपटीशन के बाद काइंडली रिवॉर्ड पैसों की शक्ल में ना दीजिए. एआई रिलेटेड ट्रेनिंग्स हो जिसमें जो बहुत बड़े बेहतरीन ऑस्पिशियस जो हमारे इदारे हैं वो करवाएं, जिसमें लम्स, आईबीए, फास्ट, ब्रिटिश काउंसिल, यूनेस्को, यहां से वो तमाम जो फोकल पर्सन हैं जिनको आप बेहतर समझते हैं, जिनकी कारकिर्दगी बेहतरीन है पूरे पाकिस्तान में, उनको वो ट्रेनिंग्स करवाई जाए, चाहे वो वन डे पर हो. ठीक है, वो अपने अपने इदारों में, अपने अपने प्राइमिसेस में पहुंचकर अपने टीचर्स को ट्रेन करवाएं, अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, जाहिर सी बात है, और इस तरह जनरेशन टू जनरेशन ये रिवॉर्ड चलता रहेगा. So ma'am, these are the very, very kind and humble suggestions. Remember, एक बस लास्ट पता नहीं मैं सेंटेंस बोलना चाहूंगी. मनी ट्रांसफर होती रहती है, बट नॉलेज ऐसी ट्रांसफर होती है जिसका कभी एंड नहीं है. मनी का एंड है. नेक्स्ट, यस, beyond grateful. I'm really, really very grateful to my worthy director, Sir Hafiz Shahabuddin Indhar Sahab, Director of ES and HS, Sakhar Region, DO, TO, and my most lovest person, my HM, Madam Farah Nas Qureshi, and esteemed Sir Jamal, and all the esteemed policy team of all esteemed policy unit or esteemed Pakistan. I'm really, really grateful to all of you, not only for conduct this Sitare session, not only for conduct the STEAM Mukablo, not only to conduct the or to emphasize us to spread the our creativity on portal. Thanks for each and everything. Thanks for each and everything. And salute to all, because your kind support, your guidance, your feedback, your follow-up in the form of weekly online sessions are very, very precious for all of us. साथ ही साथ मैं एक चीज यहाँ इंक्लूड करूंगी. थैंक यू सो मच टीम पाकिस्तान. लास्ट ईयर ना C1 में मेरी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ना बहस चलती थी कि सर 1 मंथ हो गया है हमारे ना और रिपोर्ट्स चेक नहीं हुई हैं और अभी तक हम अब उसी लेवल पर बैठे हुए हैं. बट थैंक यू सो मच के C2 में, ईयर 2 में आपने अपने टीम मेंबर्स को इंक्रीज किया, जो इतने हम्बल, इतने काइंड हैं कि 1 सेकंड के अंदर अंदर हमें रिप्लाई आता है. और साथ ही साथ वीकली बेस पर ऑनलाइन सेशंस होते हैं जो सम टाइम
बहुत सारे टीचर्स अटेंड करते हैं और समटाइम अपने किसी न किसी वजूहात की वजह से नहीं भी करते हैं, मिस हो जाते हैं, तो फिर अगेन उसी ही वीक में दोबारा ऑनलाइन सेशंस होते हैं हमारी गाइडेंस के लिए, हमें फॉलो अप देने के लिए। और अगेन अगेन एंड अगेन अनमैच्ड थैंक्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। रियली मैं एक बात सच कह रही हूँ, और मैं समझती हूँ ये जितने 56 पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं, इसमें से चलें ओके फाइन 6 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्टीम पाकिस्तान की तरफ से हैं, बट 50 इस चीज को जरूर एग्री करेंगे कि हमें प्रोफेशनली बहुत कम एक्नॉलेज किया गया। स्टीम पाकिस्तान सल्यूट ऑन यू, सल्यूट टू यू कि आप सब लोगों ने हमें पूरे पाकिस्तान के टीचर्स को एक्नॉलेज किया। थैंक यू सो मच, एंड वी आर ऑलवेज विद यू फॉर द betterment of education of Pakistan. And yes, now the last session is question answer sessions. जी मैम, मूव टू योर मैम हिरा शारिक और मैम शुमाइल फातिमा। प्लीज टीचर्स आप लोग जो है अपने हैंड्स रेज करके भी जो है अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और यू कैन आल्सो लीव क्वेश्चंस इन द चैट। ओके, राशिद जावेद साहब का आई थिंक सवाल है। सर आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद राशिद है फ्रॉम टोबरेक सिंह पंजाब। आपकी सबसे पहली चीज़ के सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू। आपने बहुत सी चीज़ें शेयर की हमारे साथ। कुछ ऐसी थी जो हम पहले अप्लाई कर रहे थे, कुछ ऐसी थी जो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। थैंक यू आपका। सेकंड ये कि आपने जो सजेशन दिए हैं ये आज तक किसी ने नहीं दी मेरा ख्याल है। मैं ऑलरेडी ये सेशन हर सेशन के अंदर, हर मीटिंग के अंदर ये सजेशन रिक्वेस्ट की है कि एक तो आप लाजमी फेस टू फेस रखें सेशन। हमारे एरियाज ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन सपोर्ट नहीं है हमारे पास, और फिर नेटवर्क पाकिस्तान में माशाल्लाह कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है, उसके ऊपर तो बात होनी नहीं चाहिए ना, इसलिए फेस टू फेस जरूरी है। तो लेकिन इसके ऊपर आज तक अमल तो नहीं हुआ। पूरे एक साल से मैं यही सजेशन कर रहा हूँ कि काइंडली फेस टू फेस मीटिंग लाजमी रखें, उसको फॉलो अप करें, क्योंकि आप भी इतना पैसा लगा रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर इसका फिर रिजल्ट्स वही हों कि 6-7 स्कूल, 8 स्कूल, 10 स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आए, तो वो कोई रिजल्ट्स नहीं है मेरा ख्याल है। तो रिक्वेस्ट है कि ये, और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैम ने रिक्वेस्ट की है कि जो मनी है रिवॉर्ड की सूरत में, अभी कंपटीशंस वगैरह भी हो रहे हैं हमारे पंजाब के अंदर, तो जो इसका रिवॉर्ड है वो कोई टूल रखें, कोई चीज़ दें हमें, ताकि हम उसको यूटिलाइज करते हुए अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को भी सिखा पाएँ। तो ये हम रिक्वेस्ट मैम ने भी की है, तो हमारी तरफ से भी यही है कि ये लाजमी इसको करें। नेक्स्ट मैम, आपने बात की है उसके ऊपर, मुख्तलिफ टूल्स के ऊपर। तो स्ट्रीम को चाहिए कि अपना एक टूल क्यों ना बना दे जिसके ऊपर हम उस फॉर्मेट के अंदर आके उसको अचीव करें। और एक कल्चरल एक्टिविटी क्यों नहीं ऐड की गई, एक कल्चरल एक्टिविटी स्ट्रीम के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम हर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो नहीं ऐड की गई। तो वो सजेशन में लाजमी आप हैं कि एक कल्चरल एक्टिविटी लाजमी ऐड करें, और कल्चरल एक्टिविटी होगी तो बच्चों में अपना कल्चर दिखाने की भी वो है, वो लाजमी रिक्वेस्ट है कि वो ऐड करें। थैंक यू। थैंक यू श्योर। सो मच मैम सर। प्लीज। जी थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू कि आपको सेशन पसंद आया और आपने एग्री की कुछ बातें। अच्छा, मैं जहाँ तक जस्ट इसलिए एंटर हुई, अदरवाइज हमारी रिस्पेक्टेड टीम मौजूद है। ये जो आप कल्चर की बात कर रहे हैं ना, तो ये आर्ट स्टीम एज जहाँ आ रहा है, ये तो आर्ट में शामिल है, और हम इसमें अपना कल्चर भी शो कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। बिल्कुल, यस। नेक्स्ट टू मैम। हाँ बिल्कुल सर, आप जो है एक्टिविटीज कर सकते हैं इस तरह की जो आर्ट रिलेटेड है, कल्चर रिलेटेड है।
जिसके अंदर परहैप्स स्टूडेंट्स कोई से कि आपके रीजन के अंदर कोई एम्ब्रॉयडरी का जो कि कोई तरीका है जो बहुत फेमस है, उसका आपने एक सेशन करा दिया। हो सकता है आपके एरिया में नहीं हो, पर आपके टीचर जो किसी और इलाके से आते हो, उनके एरिया में फेमस हो, उन्होंने आके जो स्टूडेंट्स को वो तरीके की एम्ब्रॉयडरी सिखाई, विच आई थिंक बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। सो आर्ट रिलेटेड कल्चर एक्टिविटीज़ बिल्कुल हो सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त होंगी अगर होंगी। और हम जो सिंध में करवाते हैं वो बिल्कुल जो है हमारी एक मिस अमरीन बताएंगी भी कि जो पोस्ट कार्ड्स की एक एक्टिविटी होती है वो हम करवाते हैं, जो जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स से कहते हैं कि आपके एरिया और आपके इलाके में जो कल्चर की चीज़ें हैं, जो फेमस लोग हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, उनको पोस्ट कार्ड पे लेकर आए, उनको शो करें, ड्रॉ करके दिखाएं। सो डेफिनेटली वो आपके पास ऑप्शन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आर्ट एक्टिविटीज के अंदर जो है आप कर सकते हैं। आपकी जो आर्ट के गाइड्स हैं मौजूद, उसके अंदर भी जो है इसके बारे में लिखा है, तो आप प्लीज उनको देखें और इनको आप ये एक्टिविटीज करवाएं। वी विल बी वेरी ईगर टू सी कि आप किस तरह की चीजें जो है हमारे पास लेके आते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ सकते हैं। मिस सायरा का सवाल है, आई बिलीव। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। I'm Saira Habib from Government Girls High School Sakhar, focal person. और मैडम मुझे ये थोड़ा सा पूछना था, एक तो सेशन आपका बहुत अच्छा जबरदस्त रहा माशाल्लाह, और मैडम अमरीन का जो नॉलेज देने का जो तरीका है, इंफॉर्मेशन और समझाने का, बहुत जबरदस्त। बहुत एक अच्छी बात इनकी मुझे समझ में आई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीम डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्टीम क्लब एक्टिविटी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी जो ये डेमोन्स्ट्रेशंस करवाई, क्योंकि मैंने एक स्टीम की तरफ से एक एक्टिविटी मैंने देखी थी, पेशावर की किसी स्कूल के बच्चे की थी, वो बता रहा था कि जलजले क्यों आते हैं। तो उस तरह यानी एक साइंस का एक टॉपिक है हमारा, तो इसी तरह की जो है ना, फिर मैंने एक अपनी क्लास की एक बच्ची की जो है वो एक्टिविटी तैयार करवाई और डेमोन्स्ट्रेशन में, और मैंने वो मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट को लिया और 6 में जाकर वो मैंने उससे करवाया, तो वो मेरी अप्रूव नहीं हुई, नॉट अप्रूव्ड का मेरे पास ईमेल आ गई। तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि भाई एक्टिविटी शुड बी ऑन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो फिर अब हम जब कभी कोई इस तरह की चीजें देखते हैं तो हम यही समझते हैं कि भाई हमें ये मतलब इसी तरह हमें करवाना है। तो मुझे जो अब तक लेवल कंप्लीट करने में जो प्रॉब्लम हुई वो इस यही है। अब माशाल्लाह ये कि मेरा काम काफी हो गया है, बस बिल्कुल 2-3 एक्टिविटीज रह गई हैं जिसमें मेरा ये लेवल 10 मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई, मैंने बहुत काम किया, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती थी। मतलब प्रॉपर थोड़ी सी जो है ना गाइडेंस नहीं मिली, समझ नहीं सके हम कि कहाँ से हमने कैसे करवाना है। वो तो फिर यही बात है कि थोड़ा समझते समझते जो है वो जब रिजेक्ट होती थी तो कमेंट्स भी मिलते थे, तो ये प्रॉब्लम हुई। तो फिर जैसे मैं भी डेमोन्स्ट्रेशन का बता रही हूँ, तो फिर मैंने जितनी डेमोन्स्ट्रेशन तैयार करवाई हुई थी, यकीन करें जब मुझे एक मेरी रिजेक्ट हो गई, वो मैंने फिर वो हटा दी। फिर मैंने नया डेटा तैयार किया, नए स्टूडेंट्स तैयार किए, और उसमें से फिर आज भी मैंने करवाई हैं 2 डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो एक्टिविटी बेस पे करवाई हैं। तो वो अब इंशाल्लाह आज मैं लोड करूंगी। तो मुझे जो है वो ये प्रॉब्लम रही है, तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा लेट हुआ है। बस मुझे यही कहना है। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Miss, I am Hamid Ahmed, HST from Government Park Colony High School, Mirpur Khas, Sindh. I am science teacher, also teach chemistry in 9th and metric. Madam, STEAM session is going very well, and let me share something. In the ground reality, at the school level, we have our focal teacher. Also, this session is I think is mostly almost on the online level, and there must be some practical consequences, and administration, DO, directorate, HM,
respectable persons, they must inculcate these tasks. I don't know what the system is, STEM is concerned, of what authority, but at the we are very eager and energetic to do these types of functioning at our school level, but we need assistance in terms of funding, in terms of motivation, in terms of training. What type of material should we use, and there must be a time frame, because we at the same time we are teaching our subjects, and we must have at the school level a time frame so that we can adopt these type of activities. I am aware that STEM activities should be adopted at the classroom, at the subject teaching level, but these will have some time bounded, and the authorities should play their role, especially the training sessions. So how should, especially the madam previously madam described graphics and different things which we can our gadget use by this type of gadgets, mobile device, but most of the teachers don't know how to use, how to utilize this our gadget. So STEM authorities should enhance their capabilities, should develop the capacity building of the teachers, and they should coordinate at the grassroots level, and that is my opinion. Thank you. Right. बस Thank मैं you, कहना Sir चाहूंगी Hamid. कि जी, Yes, sir. Hira, do you? बिल्कुल Yeah, we can take more questions, I think. There is one more question, then we can wrap this session up. Oh, okay, of course. जी थैंक यू जी सर हमीद एंड डेफिनेटली वी एग्री विद यू और अभी जो बात हो रही थी कि इन पर्सन सेशंस का होना वी टोटली एग्री कि बहुत ज़रूरी है एंड वी वुड रियली अप्रिशिएट कि आप अपने स्कूल्स में या अपने इर्द गिर्द के स्कूल्स में आप भी ट्राई करें टू बिल्ड सच अ कम्युनिटी कि जहाँ पे आप कोलैबोरेटिव सेशंस कर सकें अगर आपके बिल्कुल स्कूल के लेट्स से 15 किलोमीटर्स के रेडियस में और सरकारी स्कूल्स हैं पब्लिक स्कूल्स हैं build those connections उन लोगों के साथ उन टीचर्स के साथ कि इवन इफ CEO ऑफिस DO ऑफिस या DO साहब उस तरह से शायद इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा फॉर इन पर्सन सेशंस लेकिन आप खुद को आई मीन यू ऑल आर रियली केपेबल व्हेन इट कम्स टू स्टीम और आप जो भी इधर सारे टीचर्स मौजूद हैं आप अंडरस्टैंड करते हैं इवन आप पोर्टल को अंडरस्टैंड करते हैं आपको ये पता है एक्टिविटीज़ बनानी कैसे हैं आपने उनको कैप्चर कैसे करना है आपने उनको अपलोड कैसे करना है सो आई थिंक ये जो नॉलेज शेयरिंग वाली चीज़ है ना एंड वी रियली वांट टू सी कि अगर हम स्टीम सितारे सेशन भी करते हैं इसका एक मकसद ये भी है कि हम कम्युनिटी बिल्ड कर सकें सो मिस अमरीन अभी आई हैं अभी जो सवाल हुए हैं सर हमीद ने कुछ शेयर किया हमारे पास हमारे टोबा टेक सिंह से एक सर हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं उन्होंने ये चीज़ें शेयर की सो एक मकसद ये भी है कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो एंड डिस्पाइट द प्रोविंसेस के पंजाब सिंध KP और आप ही कम्युनिटी बिल्ड करके खुद भी इनिशिएटिव लें ऑन ग्राउंड एंड अगेन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इन पर्सन कैपेसिटी में भी चीज़ें रखें ट्रेनिंग्स रखें लेकिन हम आपके एंड से भी ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो हैं वो लाजमी देखना चाहेंगे लाइक वी वुड बी रियली हैप्पी अगर हमें पता चले कि सर हमीद के स्कूल ने साथ वाले 2 स्कूल्स के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग सेशन रखा है कि आप वीडियोग्राफी किस तरह अच्छी कर सकते हैं आप किस तरह डिजिटल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टीम
So yeah, but again, we are definitely working on it, and inshallah, in the future, आप बिल्कुल देखेंगे कि हम ये trainings जो हैं वो in person भी इंशाल्लाह कर रहे होंगे. जी थैंक यू मैडम। लेट मी शेयर समथिंग कि सिंध जी, लेवल जी. पर डायरेक्टरेट ऑफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर मिस राफिया हैं, उन्होंने अभी एक इशू किया है एक इंफॉर्मेशन के प्राइवेट स्कूल लेवल पर स्टेम की तरफ से हमें कुछ एग्जीबिशन हो रही है, उसमें साइंस प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा आर्ट लेवल पर 2 थीम्स दी हुई हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह पर पोस्टर कंपटीशन उन्होंने किया है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल का जो कंसेप्ट है शाहीन का कि हाउ टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स एट द फिलॉसफी ऑफ आवर नेशनल पोएट अल्लामा इकबाल, तो ये सिंध का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इसको भी एक ग्राउंड लेवल पर पहुंचना चाहिए और लाइकवाइज अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि these are the things which unite, which build the nations. Being a Pakistani, हम provincially जो हम लोग different अपना काम कर रहे हैं to build a good nation, लेकिन एक थीम ऐसी होनी चाहिए कि जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ दे और वो अक्रॉस द कंट्री वो कंपटीशन हो या कोई भी ऐसा जो है वो सेटअप आगे आना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि हमारे पास जिस तरह के मौके बनते हैं और हम अपनी जो है प्लानिंग के अंदर भी इस तरह की चीज़ें जो है शामिल करना चाहेंगे, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये सेशन स्टीम सितारे की तरह होते रहें, जिसके अंदर हमें मौका मिले आप लोग से भी जो है एग्जैक्टली सुनने का कि स्कूल में क्या चीज़ काम कर रही है, कैसे ग्रास रूट लेवल पे क्या चीज़ काम कर रही है और क्या चीज़ काम नहीं कर रही, ताकि फिर उसको भी हम चेंज करें। So thank you so much, sir, for your feedback and for all these ideas. And thank you so much, Madam Amreen, and जो बाकी टीचर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैम की बातें सुनी और उनको भी अप्रिशिएट किया। एंड मिस अमरीन इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस ऑल। शी इज वेरी enthusiastic and very energetic. जो and ये आई विश के आई होप कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं और जितने टीचर्स इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं सबके अंदर ये जज्बा हो मौजूद। तो बस एक ये सबसे दरख्वास्त है कि जो है आप हम लोग जो सेशंस कंडक्ट करते हैं तो उनको अटेंड करें, हमारे साथ इंटरेक्ट करें, गिव अस फीडबैक। जैसे सर हमीद ने, मिस सायरा ने अपने बारे में, स्कूल के बारे में बताया, सर राशिद ने भी बताया हमें। सो ये आप लोग प्लीज हमें फीडबैक दें, प्लीज हमारे साथ डिस्कशंस करते रहे कि किस तरीके से स्टीम आपके स्कूल में बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, और हम इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी और अपने पब्लिक स्कूलिंग के लिए एक बेहतरीन जो है रिफॉर्म पैदा कर सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम मैम। एक सवाल और है मैडम मेरा। सायरा हबीब फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। जैसे अभी आपने बताया कि आर्ट की एक्टिविटी भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो अगर आर्ट की हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं, उसमें हमने मेरी क्लास के बच्चों ने कुछ कहानियां लिखी हैं, बच्चों ने खुद, उनकी अपनी राइटिंग है, तो वो उसमें आ सकती है? मैम आर्ट के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम यूजली तख्लीक से बात करते हैं। आप जो है ये मुझे वो आपको इसके राइटिंग लिए कंसल्ट करना पड़ेगा, और ठीक है। मैं आपको जो है बेशक मैं आपको विल लेट यू नो कि ये हो ठीक। सकता है या नहीं। अच्छा, ठीक और है, दूसरा ये पूछना था कि जो आर्ट की अगर कोई एक्टिविटी करवाई है तो उसे हम स्टीम क्लब एक्टिविटी में ऐड करेंगे? बिल्कुल स्टीम कब एक्टिविटी के इसमें ऐड होगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग सबका। थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह आपको जो है अगले, अब हम हर महीने होगा ये सेशन, तो अगले महीने हम आपको मिलते हैं इस तरह के एक जबरदस्त सेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू, Thank you, everyone. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।